Yes, all of you, let's start with structure of atom, and our next topic is Rutherford nuclear atomic model. Okay, so now all of you, what uh, what was the experiment of Rutherford? Yes, all of you have done in school. कुछ याद है? नहीं मिस। नहीं किया, स्कूल में नहीं किया रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? 10th में होगा तो कट गया होगा पोर्शन से। 9th में? 9th में नहीं था मिस, शायद 9th में नहीं था। ठीक है, हम लोग को एसएससी में मिस, हम लोग को एसएससी में था 8th स्टैंडर्ड में था, पर इतना डेप्थ हाँ। नहीं था। हाँ मिस था हमको, लेकिन डेप्थ में नहीं था इतना। ठीक है, ठीक है। तो I'll show you video of this experiment. This experiment is about? This is means how the atomic models were discovered. उसके ऊपर है. So first we have done Thomson ना, last time Thomson पुडिंग मॉडल किया था हम लोग ने. लेकिन वो मॉडल फेल हो गया था ना? हाँ, so that's why now we will study next atomic model. Okay. Means this models, atomic models ने क्या बताया, means about atom, how atom has. Yes. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you don't have to slow down at work. Today I'll talk about Rutherford's on step. The credit for the discovery of the new supernova goes to a British. Rutherford's alpha scattering experiment. The credit for the discovery of the nucleus of an atom goes to a British physicist, Lord Ernest Rutherford. Shown here is the diagrammatic view of the famous gold foil experiment conducted by Lord Rutherford. The radioactive source, rich in alpha particles, was kept in a thick lead block with a narrow opening. The alpha particles were confined to a narrow beam by passing them through a lead sheet. Yes, all of you. So here there is a radioactive material which was rich in alpha, and this alpha rays was passed to this Miss, on the gold foil, thin gold foil. बोल. why was it kept in lead box? Every radioactive material is kept in lead box. Okay. So that उसका means transmission नहीं. Okay, I got it. With a slit. An extremely thin foil of gold was bombarded with these fast-moving alpha particles. The scattered alpha particles were detected using a rotatable detector, which has a microscope and is screen-coated with zinc sulfide. The whole experimental setup was placed in an evacuated chamber to prevent scattering by the air molecules. These striking particles caused scintillations on the screen. Based on the observations, Lord Rutherford deduced these conclusions. As most of the alpha particles pass through the gold foil without any deflection, most of the space within the atoms is empty. As some of the alpha particles were deflected by large angles, they must have approached some positive. Yes, all of you. So some rays, alpha rays, has gone. Means most of the alpha rays were gone straight. Means ये जो पहली बताया ना, ये वाला like straight.
they went straight. So since they went straight, रुदरफोर्ड ने कंक्लूजन क्या लगाया, एजम्पशन क्या किया कि एटम्स में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, एंड दैट्स व्हाई वो विदाउट एम्प्टी स्पेस होने की वजह से कुछ ऑब्स्ट्रैक्शन ही नहीं है ना, तो इसीलिए वो मोस्ट ऑफ द रेस क्या हुए जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं. Yes. Okay. Okay, got it. Then some of them have deflected. See this one. Yes. So ये क्यों हुए, जो अभी अल्फा पार्टिकल जो है वो कैसा है, अल्फा रेस जो होता है वो पॉजिटिव रे होता है, ठीक है. तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, Deflect. Repel. रिपल करेगा एक दूसरे को, Repel. एंड देयरफॉर इट इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड टू अ लार्ज एंगल. क्लियर. एंड सम जो है वो 90 डिग्री से रिटर्न हो गए, मीन्स वो जो पार्टिकल्स 90 डिग्री से रिटर्न हुए वो ऐसे कुछ पार्टिकल्स को टकराए दैट वाज वेरी रिजिड, मीन्स वो न्यूक्लियस के अंदर गए. न्यूक्लियस जो होता है एटम का वो रिजिड होता है, हार्ड होता है, बिकॉज इट इज फुल ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. Okay. Positively charged region responsible for the deflection. This positively charged region is called the nucleus. As very few alpha particles experienced the deflection, it was concluded that the volume occupied by the nucleus is very small. Since alpha particles, which are comparatively denser, were deflected by the nucleus, it shows that almost the complete mass of the atom must be within the nucleus. Yes, all of you, have you understood Rutherford's Yes, experiment? miss. Yes, miss. So we'll note down the observations which was made because they are important. So first observation. This all of you can see, ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ जो रेज है वो स्ट्रेट गए एंड वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली, है ना. कुछ डिफ्लेक्ट हुए 1 2 and 3, दिस हैव गॉट डिफ्लेक्टेड, एंड कुछ जो है वो 90 डिग्री एंगल से रिटर्न हुए. तो ए वाला जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब एटम के अंदर खाली स्पेस ज्यादा है. Yes. Some was some has gone in contact with positive protons, so they were repelled by making a large angle. And कुछ जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गए, तो न्यूक्लियस के अंदर जाने वाले जो रेज है, ये देखो अभी यहाँ पे सी है, ओनली एक रे है कंपेरेटिवली, तो वो जो थे वो एकदम फ्यू थे जो न्यूक्लियस के अंदर गए. एंड न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट है वो कैसा है, रिजिड है, हार्ड है, क्योंकि एंटायर मास जो होता है एटम का, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. यस ऑल ऑफ यू. तो वो जो रिजिड पार्ट से टकरा है वो 180 डिग्री के एंगल में रिटर्न हुए. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? So we'll write down. If you have any questions, you can ask. But questions तभी आएंगे जब भी तुम लोग ध्यान दोगे यहाँ पे. दिमाग में questions तभी आएंगे when you will pay attention. See, it is very means हम लोग समझ सकते हैं, ऑनलाइन है, इतना टाइम हम लोग स्क्रीन फेस नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन फेस करने में डिफिकल्टी आता है, कंटाला आता है, बट वो सब वो ऑप्शन ही नहीं है ना कंटाला वगैरह आने का. तुम लोग को जेई क्लियर करना है, मीन्स तुम्हें हार्डवर्क करना है विदाउट एनी एक्सक्यूज. ये सब छोड़ो, बाकी का चीजें ऑफलाइन होगा चालू तब होगा, बट तब तक क्या हम लोग लॉस करके लेने का क्या कुछ का. ध्यान दो यहाँ पे. इफ यू आर इन क्लास, अगर हम लोग क्लासरूम में रहेंगे, मैं जो सॉल्व करने बोलूंगी वो तुम लोग करोगे ही ना मेरे सामने सॉल्व, तो वही चीज तुम लोग को घर पे भी करनी है. नहीं करते हो तुम लोग. मिस एक Most- क्वेश्चन. हाँ
मिस न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज रहता है ना, तो हम्म उसके अंदर जो रे घुसी वो हम्म फिर से कैसे आई, वो रिपेल होनी सी चाहिए ना। न्यू हाँ तो 190 से वो डिफ्लेक्ट हुआ मीन्स रिपल ही हुआ ना वो। सी दो केसेस है, एक है तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर रे जो गया, ठीक है, वो वो रिपल हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ बाय एंगल ऑफ 1 मीन्स उसको उन लोग ने 1 मीन्स रिटर्न कर दिया 90 डिग्री के एंगल से। एंड कुछ जो रेस थी वो न्यूक्लियस के बाहर गई मीन्स वो सिर्फ क्या क्या हुई मीन्स ये पॉजिटिव है, ये भी रिपल हुई है, ये भी रिपल हुई है, बट दोनों का इंटेंसिटी अलग रहेगा कि नहीं सौम्य? ये बाहर है और ये अंदर है, तो अंदर गया मीन्स वो हार्डेस्ट पार्ट को जाके टकराया एंड रिपल हुआ, और ये सिर्फ क्या हुआ, साइड। सिर्फ रिपल हुआ हाँ, ऐसा। इसलिए बड़ा एंगल बाय बना। हाँ, समझा सौम्य? दो केसेस है रिपल्शन। ओके। सो 90 डिग्री से रिटर्न आने वाले जो रेस थे वो कम थे, क्योंकि न्यूक्लियस छोटा सा होता है कंपेरेटिवली, जो साइज होता है एटम के उसके रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड इसलिए सिंस इट इज वेरी वेरी स्मॉल इट इज रिजिड, क्योंकि साइज छोटा है और अंदर जो पार्टिकल्स है वो बहुत सारे हैं, तो इसके वजह से न्यूक्लियस कैसा बन जाता है, रिजिड, हार्ड बन जाता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? इसलिए मीन्स बहुत कम रेस रिपल हुए है, राइट? हाँ, so most of the alpha particles pass through gold foil without deflection. So this is our first observation, correct? Second Miss, observation क्या था? Miss, बोलो। Miss, the radioactive source will only have alpha particles. नो, यहाँ पे इन लोग ने एक्सपेरिमेंट में अल्फा यूज किया, दे रेडियो एक्टिव मटेरियल कैन आल्सो गिव बीटा रे, गामा रे, गामा। डिपेंड। Okay. इस बार वो टाइम पे डिस्कवर था क्या ये सब अल्फा ऑप्टिकल? हाँ यस, इसीलिए तो यूज किया ना। ये एक्सपेरिमेंट कभी का है, दिस इज ऑफ 1909, ओके। एंड अल्फा पार्टिकल्स जो डिस्कवर हुए थे दैट वाज इन 1896 मींस अल्फा रेडियो एक्टिविटी जो डिस्कवर हुई थी दैट इज इन 1896। मीन्स तभी के लोग भी बहुत स्मार्ट से लगता है, मींस स्मार्ट थे, यानी तुम लोग को पता है उनको ना, इतना इतना सब पता था। यू नो ना हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लोग स्मार्ट थे इसलिए तो तभी तभी मीन्स हिस्ट्री पता है कि नहीं मालूम, पता है ना, तभी हाँ आई सर्जरीज वगैरह करते थे हाँ, इंडिया में जो ऋषि मुनि होते थे। यस, बहुत फिर स्मार्ट थे। अभी और ओपन हार्ट सर्जरी भी इंडिया में तो हुआ। हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था। देन अकॉर्डिंग टू दी जो ग्रंथ है महाभारत एंड ऑल, ये उसके अकॉर्डिंगली तो रावण के पास एरोप्लेन भी था, है ना। यस, न्यूक्लियर महाभारत, no, in Ramayana it was having Ravan was having aeroplane, and in Mahabharat nuclear war हुआ था, है ना। तो एशियन टाइम्स में तो ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप था यस, इन मीन्स इन एवरी फील्ड, इन इंजीनियरिंग फील्ड। तभी के अगर हम लोग मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी देखेंगे, आर्किटेक्चर जो था तभी का, इट वाज पहले सो का था ना। एडवांस। मेडिकल फील्ड वाज डेवलप, बट देन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हम लोग के सब बुक्स वो सब लेके गए ना उन लोग, या सो दैट्स व्हाई अभी हम लोग ये हो गए, बैकवर्ड हो गए। चलो, सो सम ऑफ द अल्फा रेज, some of the alpha particles was
deflected, making a large angle. Greater than 90. Some of the alpha particles was deflected, making angle. मैंने एंगल लिखा है. Angle smaller than 90 degree. सॉरी, स्मॉलर नहीं, 180 का है एंगल वो. ये जो अंदर जाता है और रिटर्न होता है, दैट इज 180 एंगल. So now all of you. So इसका रीजन क्या था? Without deflection, what was the reason? empty space. What was concluded? Consists of large empty space. Second point का क्या conclusion किया? न्यूक्लियस को सिर्फ टच करके डिफ्लेक्ट हो. So this was repelled due to going in contact of positive protons. And third point का क्या conclusion किया? This was repelled due to getting collided with rigid particles present in nucleus. Yes, all of you, is this clear? यस. यस मिस. ये लिख लिया सब लोग ने? हाँ. हाँ मिस लिख लिया. इरेज कर दूं? यस. Now conclusions. What were the conclusions? Yes, all of you. What are the conclusions? First, atom consists of empty space. positive particles, proton. किधर है प्रोटॉन? न्यूक्लियस के अंदर है ना? न्यूक्लियस. इन न्यूक्लियस. फिर entire mass of atom is concentrated in nucleus. Yes, is concentrated in nucleus. Then और क्या बताया उसने? Positive protons are equal to negative electrons. Yes. तो ये कैसे पता चला? वो तो मीन्स है ही ना, तुम्हारा एटम जो होता है न्यूट्रल होता है ना, इसका मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. फिर प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है?
outside the nucleus. Yes, electrons are present outside the nucleus in orbits. Yes. And मिस आपने थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या लिखा फिर से बोलो ना. positive protons are equal to negative electrons. दोनों का नंबर सेम है. ओके, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? आउटसाइड द न्यूक्लियस. आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स. हाँ, प्रोटॉन्स अंदर है न्यूक्लियस के, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर है? बाहर है, ऑर्बिट्स के अंदर. और फिफ्थ पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर. प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर held together by electrostatic force फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. attraction. Okay. उसने ये भी कंक्लूड किया ना कि एम्प्टी स्पेस है बीच में. हाँ साथ में इसमें इंक्लूड करना. हाँ, ठीक है. You can write down that atom consists of large number of empty space. बट अभी भी ये मालूम नहीं था कि अभी उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर है न्यूक्लियस के, इन ऑर्बिट, मींस इन अ फिक्स्ड पाथ. बट इट वाज नॉट नोन कि ऐसे कुछ शेल्स भी रहेंगे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ये सब नहीं मालूम था रुदरफोर्ड को. ओके, ये हो गया सबका. यस मिस. Yes. Saish, radioactive source will have which other particles so that it will not affect rays? Beta rays and gamma rays. So फिर वो क्यों नहीं emit हुए? now I understood. That's why I asked you. I asked you a question that हाँ. only alpha No, particles are no, used. no. See, some there it depends on element. Some elements emit only alpha particles, some emits alpha, beta, some emit all three. वो depend करता है. जैसे हीलियम, हीलियम is nothing but a alpha particle. उसके अंदर बीटा और गैमा है ही नहीं. रेडियम है, रेडियम कैन emit all three particles. Okay. अल्फा सबसे छोटी रे है. No, छोटी रे नहीं है अल्फा. अल्फा इज heavier one. तो एक्सपेरिमेंट के लिए हम गामा और बीटा भी यूज कर सकते हैं. बट अगर हम लोग नेगेटिव रे यूज करते थे तो फिर क्या होता था उससे? वो तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में अट्रैक्ट होता था ना, डिफ्लेक्ट होता ही नहीं था. ओके. बीटा नेगेटिव होता है और गामा न्यूट्रल होता है. तो गामा से तो कुछ कंक्लूजन ही नहीं मिलता था अपने को. तो दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड अल्फा. क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए उसका सेम, अगर पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए उन लोग ने अल्फा ही यूज किया. उससे हम लोग एग्जैक्ट ये बता सकते थे ओके. जो भी कुछ अभी हम लोग ने बताया. सो देयर इज वन
हाँ ये चाहिए, तुम लोग को चाहिए तो इसके फोटोज ले लो बाद में रेफर करने को, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस इमेजेस। ये ऐसे वहां पे डिविएशंस थे। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ थर्ड फोर्थ। ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ थर्ड फोर्थ। सो रुदरफोर्ड ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, करेक्ट? यस ऑल ऑफ यू, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट आउटसाइड द यस मिस। न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बाहर वो ऑर्बिट्स में है, मींस फर्स्ट शेल में है, सेकेंड शेल में, ऐसा कुछ भी उसने नहीं बताया था। तो उसने क्या बताया रुदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली कैसा है, मूविंग है। ठीक है, वो मूव कर रहा है। तो अभी यहाँ पे एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था मैक्सवेल। उसने थियरी बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थियरी, थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अकॉर्डिंग टू दैट थियरी, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है एंड वो रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर रहा है। बराबर है ना? और ये थियरी अगर हम लोग भी, suppose if we are exercise, if we are continuously moving, we are dancing or we are doing exercise, cycling, walking, तो हम लोग में से भी एनर्जी एमिट होती है कि नहीं? Yes. So same, electron is charged particle, we are also charged particles, अपने बॉडी में भी चार्ज है। इलेक्ट्रॉन is also charged particle and it is moving continuously, so it is emitting energy। तो वो अगर कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। Yes. उसका Yes, miss. एनर्जी खत्म होते जाएगा ना। तो जब भी एनर्जी लेवल डिक्रीज होगा उसका, तो वो न्यूक्लियस के नजदीक में आएगा। तो ये पाथ दिया है, मींस अभी सपोज तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है एंड इट इज कंटिन्यूअसली एमिटिंग द एनर्जी। ओके, so when it is emitting energy, it is coming closer to nucleus। Miss. ऐसे। So एक मिनट लेरॉन, तो हाँ. when it is coming closer to nucleus, तो वो क्या कर रहा है, कैसे क्लोज कैसे आएगा? अभी ऐसा डायरेक्ट नहीं जा सकता है ना, Evolve करके. it will not go डायरेक्ट। तो ये कैसे जाएगा, ऐसे में स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा Yes. एंड देन न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉप करेगा। मीन्स ये रुदरफोर्ड ने बताया। बट फर्मी करके एक साइंटिस्ट था, उसने बताया, उसने बोला, मीन्स ये तो उसने कंक्लूड कर दिया था, उसने जब ये उसका थियरी बनाया तो ये कंक्लूड कर दिया था। फिर उसके बाद में फर्मी ने उसका थियरी रीड किया, उसने फर्मी ने क्या बताया, जो न्यूक्लियस होता है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, इतना छोटा होता है। न्यूक्लियस जो है वो 10⁻⁻15 मीटर है इसका रेडियस, और एटम का जो साइज होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। सो यू कैन थिंक कि कितना छोटा है न्यूक्लियस कंपेयर टू टोटल रेडियस ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में भी न्यूक्लियस बहुत छोटा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल नहीं हो सकता है। इज दिस क्लियर? मिस वापस बोलो। Miss, वापस बोलो ना. फिर सी, न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन से बड़ा रहता है ना? नो, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इस कैसे बट हाँ. कैसे है? न्यूक्लियस कैसे छोटा होगा इलेक्ट्रॉन से? इतने इलेक्ट्रॉन सारे का मास भी बहुत वो इसमें इतने ज्यादा अट्रैक्टिव पावर्स होते हैं कि वो दोनों बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक मिनट, फोर्स मैं होता है तुम लोग को इलेक्ट्रॉन्स का। साइज बताती हूँ, मैं तुम लोग हाँ. को साइज बताती हूँ इलेक्ट्रॉन का। एंड
I'm not getting it now. इस पर रीजन यही होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स का इतना कंप्रेशन हो जाता है न्यूक्लियस पे कि इट श्रिंक्स। नहीं, ये मुझे नहीं पता है। श्रिंक्स ऐसा कुछ नहीं है, श्रिंक एंड ऑल। बट में इसको बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और एक दूसरे के पास क्लोज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि दैट्स व्हाई द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन जैसे। सेम पिच, हाँ ऐसा हो सकता है, बट इन पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मुझे एक्चुअली साइज नहीं मिल रहा है यहाँ पे, साइज एग्जैक्ट साइज नहीं मिल रहा है तुम लोग को बताने के लिए। ठीक है, वापस से सुनो। और ये यहाँ पे स्टेबिलिटी, रिया स्टेबिलिटी, रुदरफोर्ड मॉडल couldn't explain the stability of atom। कैसे? उसने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, मींस दे आर, इट इज स्टेबल। यस दिया, तो स्टेबिलिटी तो किया था उसने एक्सप्लेन। Okay, miss. See, listen, there was रुदरफोर्ड ने रेफरेंस लिया था मैक्सवेल थियोरी का। मैक्सवेल का कौन सा थियोरी? मैक्सवेल थियोरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल थियोरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मैक्सवेल ने क्या बताया था कि एनी चार्ज पार्टिकल which is moving will give energy, which will evolve energy। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट रुदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया था? इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस and emits energy, and since its energy level is getting decrease, क्या होगा? It will come closer to nucleus. It will come closer to nucleus. Following spiral path. Yes, all of you, have you understood this? Yes, and ultimately falls inside the nucleus। किधर फॉल होता है? न्यूक्लियस के अंदर फॉल होता है। And also he said time required to fall of electron in nucleus is 10 raised to minus 10 meter, 10 raised to minus 10 seconds, which is not possible। okay, इतना छोटा टाइम होना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये थियोरी क्या कर दिया था, ये वाला जो उसका पॉइंट है, that was discarded।
Clear, all of you? Yes, all of you. यस मिस। मिस मेरे लास्ट पास वाला में स्टेटमेंट एक बार फिर बताओ। अल्टीमेटली वो क्या होता है, स्पाइरल घूम के न्यूक्लियस के नजदीक आता है एंड अल्टीमेटली वो क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉप हो जाता है। ओके यस और टाइम जो रिक्वायर्ड है ये सब होने के लिए वो 10⁻⁻10 सेकेंड। 1 सेकेंड यानी क्या होता है, कुछ नहीं ना। तो 10⁻10 सेकेंड बोला तो ये पॉसिबल है क्या? नो। तो ये उसका फर्स्ट ड्रॉबैक है, दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। इतना फास्ट ओके मतलब हमको दिखेगा भी नहीं। हाँ, तुम्हें तो ऐसे भी नहीं दिखता है ना इलेक्ट्रॉन, एटम, प्रोटॉन। ये यस निखिल, ये अभी मुझे ना फर्मी का वो रेडियस वाला वगैरह मिल नहीं रहा है, तो वो मैं डेटा कलेक्ट करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं बताती हूँ पॉइंट। मिस आई मेरे को नीड मिला, टू, गूगल पे मिला मेरे को। क्या है बताओ, मुझे लिंक भेजो। मिस बट उधर लिखा है मैं कि जो बोल रही हूँ वही मिला है क्या तुम्हें? मुझे साइज नहीं मिला, पर उधर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन इज फार बिगर देन न्यूक्लियस। लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन इज फार बिगर देन न्यूक्लियस। हाँ मिस हाँ वो तो मिस। मुझे भी मिला, लेकिन कैसे वो नहीं बताया है। मिस उसमें कैलकुलेट किया है वो चीज को, बट अभी वो तुम लोग ने मुझे फिगर्स पूछे ना, मीन्स वाओ, तो वो अभी वो भी है मेरे पास में, बट अभी मुझे ना मेरे बुक थोड़े रेफरेंस बुक देखने पड़ेंगे, ओके मिस। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। तो मिस इसीलिए मैंने वो पॉइंट भी यहाँ पे नहीं लिखा है फर्मी वाला, कि वापस से फिर तुम लोग के दिमाग में कुछ डाउट नहीं आए इसको लेके। मिस मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ मिस मतलब अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं उनके न्यूक्लियस का साइज अलग अलग होता है ना? हाँ हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट रहेंगे ना उसके अंदर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो साइज भी डिफरेंट रहेगा। ज्यादा फिर 10 टू जितने माइनस ज्यादा 10 न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे उतनी छोटी साइज होगी ना। कैसे, उतनी बड़ी साइज होगी ना। अभी हम लोग ने क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा, when number of shells increases, number of electrons increases, size increases। हाँ मैं साइज इंक्रीजेस, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ गए, पर हाँ न्यूक्लियस की साइज छोटी होती है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं, प्रोटॉन्स हाँ बढ़ता तो वो है, छोटी शेल सेम है तो छोटा होगा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, ये लिख लिया सब लोग ने फॉर फर्स्ट पॉइंट। मिस वन लिखो, ये इसका नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इसका दूसरा पॉइंट भी एक्सप्लेन करना है, वो मुझे अभी करना है क्योंकि इसके कंटिन्यूएशन ही है वो, फिर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में वापस से पूरा बताना पड़ेगा तुम लोग को। तो लेट अस कंप्लीट दिस ड्रॉबैक। ओके मिस। मिस ले लिया स्क्रीनशॉट। मिस एक मिनट हाँ। ले लिया ना, चलो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अभी नेक्स्ट पॉइंट रुदरफोर्ड ने क्या बताया, नेक्स्ट पॉइंट रुदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली एनर्जी देते हैं, बराबर, एनर्जी वो दे रहा है, तो उसको कंटिन्यूअस एनर्जी का सप्लाई भी है, मींस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है, एमिट करता है। तो उसकी जो एमिशन जो होती है उससे अपने को क्या मिलता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलता है। ओके, but then when it was observed with good quality, means high quality of microscope, तो वो जो स्पेक्ट्रम थे वो कैसे थे, डिसकंटिन्यूअस थे। तो ये भी रुदरफोर्ड का जो एक्सप्लेनेशन था वो रॉन्ग हो गया।
सो मे बी बिकॉज रुदरफोर्ड के टाइम पे उतना अच्छा क्वालिटी का माइक्रोस्कोप, अच्छे लेंसेज वाले माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं रहेंगे, ये भी एक रीजन हो सकता है। मैं लिखती हूँ पॉइंट। मिस लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है अब? अभी तुम्हारे बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? यस। तो उसको किधर से मिलती है? एटमॉस्फेयर में से ना। ओके। Explain outside the nucleus, outside the nucleus, outside the nucleus, all space is occupied by electron. Electron continuously absorb energy and evolves energy. ओके, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड इवॉल्व करता है। एंड देयरफॉर atomic spectrum will be continuous. But when the atomic spectrums were observed later, they were not continuous. They were discrete and discontinuous. Clear, all of you? इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली क्या होता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? अभी मैंने लास्ट टाइम आई थिंक तुम लोग को बताया था, प्रिज्म बताया था। प्रिज्म क्या करता यस मिस। है? एक लाइट गिरता है, व्हाइट लाइट, और Yes. 7 लाइट मिलती है उधर से, 7 कलर मिलते हैं, 7 कलर। यस। So that is atomic spectrum. Miss, water droplet also act as a prism, right? Yes, every matter रेनबो से बनते हैं। every matter has a tendency to show atomic spectrum, but कुछ मैटर का कलर्स हम लोग को विजिबल है, कुछ मैटर का कलर्स अपने को इनविजिबल है, बट स्पेक्ट्रम खाली स्पेक्ट्रम के 7 कलर्स ही विजिबल होते हैं ना, बाकी के नहीं होते। हाँ एग्जैक्टली, सो इसीलिए मैंने वही बोला कि कुछ कलर्स अपने को दिखते हैं, कुछ के नहीं दिखते हैं, बट हर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है। एनर्जी एमिट कर रहा है मींस इट इज गिविंग अ स्पेक्ट्रा। मिस मतलब 7 से भी ज्यादा कलर होते हैं? Yes. We'll study now all those colors. Okay. वैसे स्पेक्ट्रम कब बनता है? लाइक जब इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तब, या उल्टा? हाँ, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, इट एब्सॉर्ब्स एनर्जी। जब ये एब्सॉर्ब करेगा तो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे जाएगा, and then when it goes to higher state it emits energy. Okay. So whenever energy is emitted, you get colors. If it is in that range of wavelength or frequency, you will get colors. अगर वो कलर्स के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा है तो कलर्स नहीं दिखेगा। अभी भी हम लोग के बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन्स है, इन everything is a matter, in everything you have Yes. electrons and they are giving spectra.
some are visible, some are invisible. Now for example, अभी ये जो हम लोग बोलते हैं, अभी हम लोग actually radiations में है. So that radiations are what? That is a spectra. अभी वाईफाई सबके घर पे है, मोबाइल पे डेटा है, रेंज है, मीन्स क्या है ये सब? They are spectra. They have some wavelength, they have some frequency, and our body is going through it. तो उसके adverse effect, cancer. Now why cancer is occurring? That is Due to because the of radiation of this. mobiles, Yeah, radiation. What is radiation? It is a spectra. frequency. It is a kind of, yes, it has frequency, it has wavelength. Atomic spectrum also has wavelength frequency. So तुम्हारा wavelength frequency differ करता है, वैसे radiations differ करते हैं, spectra colors differ करता है. Is like a nuclear like type nuclear. Nuclear, yes, it nuclear का energy होता है. For Okay. every energy you have wavelength, you have frequency. मिस पर उसकी एनर्जी तो बहुत हाई होती है ना न्यूक्लियर रेस उसकी yes, उसकी वो एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है. अभी बोल रहे हैं मीन्स लाइक 5G आएगा तो उतने ज्यादा रेडिएशन आएंगे. मैं उसके बहुत डिसएडवांटेजेस बोलते हैं. हाँ, एंड वो रेडिएशन के वजह से कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे. तो 5G नहीं आए, दैट इज अ बेटर थिंग. वी कैन हैव ऑफलाइन लेक्चर्स, है ना? Yeah. बट 5G नहीं चाहिए. मिस मतलब 4G की वो स्पीड बढ़ा रहे हैं, मतलब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, राइट? मीन्स तुम्हारा नेटवर्क जो है, रेडिएशन जो है वो ज्यादा डेंस होगा, Yeah. जिसके वजह से तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा फोन का. Oh. Okay. मिस So तो when you- वाईफाई में क्यों नहीं होता है? वाईफाई में भी है, वाईफाई में भी रेडिएशन इसने बोला वाईफाई में नहीं होता. मिस वैसा नहीं, पर आप बोलते कि 5G से रेडिएशन बहुत बढ़ जाएगा, तो वाईफाई से ऐसा नहीं होता. वाईफाई का अपना वो छोटा सा रहता है, मालूम है ना डब्बा. और 5G के टॉवर्स लगेंगे, सो दे आर सो बिग टॉवर्स, मींस हाँ मैम. पूरे और एरिया में फर्क है आने कि के लिए. एक तो कि हम जो वाईफाई वो मॉडेम से आता है तो बहुत छोटा है वो, और उसका जो स्प्रेड हो रहा है वो स्ट्रेंथ भी कम है. हाँ, और जब उसका लिमिट 5G भी होता मोबाइल और है. वो आता है ना, तो प्रॉब्लम होता है कि वो जो मोबाइल है वो भी 5G रेज कंटिन्यूसली रिसीव करने का ट्राई कर रहे हैं. और वो फोन में तुम्हारी भी बॉडी वैसी चिप्स ही लगेंगी कि वो 5G मींस हाँ उतनी 5G रिसीव कर रहे पावरफुल हैं. चिप्स लगेंगी कि वो 5G का नेटवर्क कैप्चर करे. और तो फिर इसलिए फोन भी वो रेडिएशन, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशन आएगी बॉडी पे. यस, फोन भी Okay, रेडिएशन miss. देगा, टॉवर भी रेडिएशन देंगे. Got it. और वाईफाई अभी कैसा है, लिमिटेड होता है. अभी सपोज तुम्हारा 2 स्पीड पैक BHK होता है, राइट? हाँ, तो वो लिमिटेड एरिया तक होता है. ज्यादा नहीं होगा स्पीड. एरिया पे जाओगे देन यू आर सेफ. हाँ. बट वैसा टॉवर्स का नहीं होगा. टॉवर्स जो लगेंगे तो वो पूरा एरिया कवर करते हैं. Okay, all of you. Yes. Yes. So we'll stop here and we'll continue in next lecture. Okay, miss. Okay. So what is Thank your you. homework? You have to do. I'm not giving you any homework. It means you have to Yes. study classification. Next Sunday you have exam. Yeah. And Okay, miss. solve maximum things. क्या क्या solve करोगे तुम लोग? Start अभी Sunday Module exam and हो app. जाएगा. Sunday एग्जाम तुम्हारा हो जाएगा ये वाला मैथ का. फिर तुम्हारा क्लासिफिकेशन तुम्हें लेना है. तो क्लासिफिकेशन में what you will solve module, you will solve previous year questions, and I will send you DPP. I'll send it on Monday. मुझे कोई याद दिला देना DPP के लिए. तो मैं ग्रुप में DPP भेजती हूँ क्लासिफिकेशन चैप्टर का, उसको सॉल्व करो. Okay, miss. ओके निखिल, मैंने चेक नहीं किया है, शायद ग्रुप में भेजा है क्या तुम लोगों ने? ठीक है, I'll check it. एंड वो फॉर्मी वाला भी मैं बताती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में. साइज मुझे मिलता है क्या, मैं चेक करती हूँ. ओके, ऑल ऑफ यू विल स्टॉप हियर.
Bye bye. Take care. Bye, All thank the you. best. Thank you, miss. Miss, thank you. Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye.